का वार्षिक शिक्षा ज्ञान कार्यक्रम। कोविड-19 के बाद शिक्षा की गुणवत्ता और भविष्य को लेकर विचार विमर्श। नई दिल्ली, 28 फरवरी 2023। पिछले 22 वर्षों से भारत में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन को प्रेरित करने वाले अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने आज सिल्वर ओक इंडिया हैबिटेट सेंटर, नई दिल्ली में वार्षिक शिक्षा ज्ञान कार्यक्रम डिजिक्विटी का आयोजन किया। पहुंच और गुणवत्ता पर चर्चा करते हुए डिजिक्विटी शिक्षा में पैमाना और नवाचार लाने के लिए सहयोग की शक्ति का प्रदर्शन करते हुए कोविड-19 के बाद नई विश्व व्यवस्था और सीखने के भविष्य में STEM शिक्षा और करियर की भूमिका पर चर्चा की। AIF के पुरस्कार विजेता प्रमुख शिक्षा कार्यक्रम डिजिटल इक्वलाइजर द्वारा संचालित डिजिक्विटी ने 120 क्षेत्रीय विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों और कॉर्पोरेट्स को बच्चों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाने, शिक्षा शास्त्र के रूप में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने और उन्हें 21वीं सदी के लिए तैयार करने पर विचार करने के लिए एक साथ जोड़ रहा है। प्रतिष्ठित पैनल में प्रमुख नीति निर्माता, शोधकर्ता, शिक्षाविद और शिक्षा व्यवसायी शामिल थे, जैसे श्री चिंतन वैष्णव, मिशन निदेशक, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, श्री विश्वजीत साहा, निदेशक कौशल शिक्षा, CBSE, डॉक्टर निशा मेंदिरत्ता, प्रमुख वाइस किरण प्रभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, मूनलैंड टेक्नोलॉजीज के निदेशक डॉक्टर माइलस्वामी अन्नादुराई, इसरो के पूर्व निदेशक, श्री थावसीलन, IAS प्रधान निदेशक, स्कूल शिक्षा, नागालैंड सरकार, सुश्री स्मिता नेगी, वाइस प्रेसिडेंट, हेड ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट इंडिया, बायर, सुश्री माबेल अब्राहम, संयुक्त महाप्रबंधक, CSR लार्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, श्री संजय गुप्ता, CEO इंग्लिश हेल्पर इंक, लेफ्टिनेंट संयुक्ता चतुर्वेदी, निदेशक, डिजिटल इक्वलाइजर, अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF और श्री बस्करन, प्रमुख इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी AIF। भारत में शिक्षा के बदलते परिदृश्य पर चर्चा करने के लिए क्षेत्रीय विचारकों को एक साथ लाने के एक व्यापक विषय के साथ डिजिक्विटी की शुरुआत एडकोर्ट द्वारा मुख्य भाषण के साथ हुई। Yeah, I am Dr. Mailsami Annadurai. Worked in ISRO Satellite Center for 36 years and various programs. You know, some of the signature missions like Chandrayaan and Mangalyaan. I had the opportunity to lead the team for the grand success of Indian presence in the moon and Mars. And today, after post-retirement, I am trying to see how my learning, my experience can help for the education field, for the especially the students in the STEM education. Today, basically, you look at here the AIF into among the three verticals. With respect to digital equalizer point of view, they're looking about the women empowerment with education, especially for the today's context. Across the globe, you know that science, technology, engineering, mathematics, STEM education is the real need for the youngsters to future ready point of view with respect to employability and as well as their relevance in the future, the changing world. The STEM education is really must, and definitely India, which is having nearly 20% of the world's youth being in India. In this advanced world, what is required is more than the employability for the immediate. Basically, the people should learn how to learn because now even employability, if you take, I think every 5 years, I think the system is keep changing. That means you have to equip yourself to learn how to learn even after employment. That means in the school, more than what you learn, how to learn is more important. And that too, while learning, experiential learning is called for, and student-centric learning is called for. And towards that, especially beyond all the things, STEM or even STEAM, that means science, technology, engineering, arts and mathematics. I think that needs to be talked to the people. And while doing it, beyond even government, I think a good amount of corporate activities under the CSR, other things also can help for the masses, because India is having
huge number of classrooms, and every classroom having a well-equipped systems and well-trained teachers is going to be near impossible. So to make that to happen, I think a lot more can be done. The students who have studied and are now and well positioned there, and as well as the corporate companies, they can do their societal thing. That way, AIF is bringing the things together. The American Indian Foundation is American companies, they are positioned in India. Their CSR activities towards education, how it can be harnessed in a focused way. I think there's really doing a fantastic job they are doing, and I am happy to be part of their future endeavors. प्रोग्राम जो है दो तीन चीज़ें बड़ी इम्प्रेसिव है इसके बारे में। एक तो इतने सालों से जो AIF काम कर रहा है स्कूलों में, कुल मिला के कुछ 24,000 से ऊपर स्कूलों में इतने सालों से इतने बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, ये एक अपने आप में एक कामयाबी है। ये सेक्टर्स, गवर्नमेंट स्कूल्स, इतने सारे स्टेट्स वगैरह में काम करना इज़ नॉट ईजी। सो आई थिंक ये इज़ वेरी एक्साइटिंग टू सी। दूसरा, आज का जो फोकस है, जो डिजिक्विटी वाला फोकस है कि डिजिटल एक्विटी कैसे बने। तो जैसे हमारे देश में तो हम देख ही रहे हैं कि एक कई प्रकार की इनएक्विटीज़ अभी भी हैं हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में, लेकिन ये जो इनएक्विटी है वो जो भौतिक वर्ल्ड में जो है, मटेरियल वर्ल्ड, इसको डिजिटल वर्ल्ड में भी होना ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो इस पे काम करना कि बच्चों को पहले से ही उनके खुद के रिसोर्सेज कितने भी कम हों, उनके डिजिटल समझ और डिजिटल रिसोर्सेज बाकी बच्चों के बिल्कुल समान हो, ये एक अपने आप में इज़ अ गुड अंडरटेकिंग। हाँ, तो ये इसमें रोबोटिक्स, AI वगैरह में तो काफ़ी साइंटिफिक काम हो रहा है, जिसमें ख़ास करके टीचर्स को ट्रेन करना ताकि वो बच्चों को इस प्रकार की नई टेक्नोलॉजी सिखा सकें। ये काम बहुत अच्छी तरह हो रहा है। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स में एक प्रकार का एक खौफ होता है कि टेक्नोलॉजी को छूना नहीं है, टूट जाएगा, इसको कैसे चलाएंगे वगैरह। ये जो डर है ये इस प्रकार की एक्टिविटीज़ से कम हो रहा है, और टीचर्स जब सीखते हैं तो फिर बच्चों को भी सीखने में मदद। शिक्षा पद्धति तो मुझे लगता है आगे गई है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट्स हमें डिजिटली नहीं करने पड़े थे पहले, वो कोरोना के दरमियान हमको करने पड़े। वैसे डिजिटल जो है वो किताबों का कंपेटिटर नहीं है। यानी अगर आपके पास कोई डिजिटल मीन्स हैं तो ऐसा तो नहीं है कि आप किताब पढ़ना बंद कर, लेकिन ये सही बात है कि बिहेवियरली क्या हो रहा है कि बच्चे जो हैं डिजिटल गैजेट से काफ़ी जुड़े हुए हैं अभी। तो एक प्रकार से एक डिसिप्लिन और फ्रीडम और डिसिप्लिन को बैलेंस कैसे करें, ये काम जो है पूरा स्कूलों को करना है, पेरेंट्स को करना है, बच्चों को खुद को करना है। क्या मैसेज देंगे सर लास्ट? हाँ, नहीं, आगे बढ़ते रहें। AIF का जो काम है, जैसे 24,000 स्कूल में जो काम किया है, ये अभी भी हमारे देश में कुछ 2 लाख से ऊपर स्कूल्स हैं जिनको इस प्रकार का काम चाहिए। तो बहुत काम बाकी है। बहुत अच्छा काम हुआ है, लेकिन इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक कैसे जल्द से जल्द पहुंचाया जाए, इस पे हमें साथ में मिलकर काम करना है। वेदी हुए, मैं डिजिटल इक्वलाइज़र प्रोग्राम जो AIF का एजुकेशन प्रोग्राम है उसकी प्रोग्राम डायरेक्टर हूँ, और पिछले 6 साल से मैं इस प्रोग्राम को चला रही हूँ। इसके बारे में ये कहना चाहती हूँ कि डिजिटल इक्वलाइज़र गवर्नमेंट स्कूल्स में पिछले 18 साल से काम कर रहा है। हम डिजिटल का जो ब्रिज कर रहे हैं, एजुकेशनल के जो कमियां हैं बच्चों में, जो उनको रिग्रेशन और वो है उनको, और साथ साथ में डिजिटल का जो गैप है उसके सिलसिले में काम कर रहे हैं। पिछले इतने साल से 35 स्टेट्स में काम कर रहे हैं, तो ये समय एकदम सही है जब हम इस फोरम पे आएँ। और गवर्नमेंट इस क्षेत्र में काफ़ी काम कर रही हैं, बाकी सब ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत काफ़ी सारे कॉर्पोरेट एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म और माध्यम है जहाँ पर
हमने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ध्यान में रखते और एक्सेस टू एजुकेशन पर बातचीत करें, क्योंकि सबके बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग है, कि उन सब का समन्वय लेकर आगे, जैसे आज नीति आयोग के डायरेक्टर ने जो बातचीत कही कि अभी रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, तो हम सब अगर मिलके ये कर सकें और उसको उसका फ़ायदा बच्चों तक पहुंच सके और उनका फ्यूचर ब्राइट हो सके, इसी के माध्यम से ये इवेंट किया जा रहा है। Seelan, I'm currently posted as the Principal Director of School Education and the CEO of the State Health Authority of Government of Nagaland. So we've been working with American India Foundation extensively in Nagaland, and the way Digital Equalizer has been helping bridge the divide in terms of people with very limited access or no access to digital education has been phenomenal. They've been working with a lot of schools in our state, and I think right from building in the enabling IT infrastructure to building the digital competencies of teachers and students, they've helped us a lot, and we look forward to working with them in the future as well. How you see the difference between the education in the Nagaland or India? So I wouldn't say, there are a lot of common elements, of course. The central government, as you're aware, education is a concurrent policy, is a subject matter of, which is in the concurrent list, and a lot of the schemes that the central government is implementing are being implemented in Nagaland as well. There are several state-specific initiatives as well. So right now, there's still a lot of catching up that needs to be done, to be the best when it comes to education in the country. So we also have a World Bank funded project that's currently in place in Nagaland, which aims at which has two broad objectives. One is to improve the school governance, which is one of the problems across the country, not just in Nagaland, but also improve the teaching and learning practices. So with that, we'll be able to bridge the gap between the best of the best in the country and what's currently in vogue in Nagaland. So we're getting there slowly but surely. Yeah. नमस्कार, मेरा नाम श्रेया रली है। मैं अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन के लिए काम करती हूँ। मैं उनकी डायरेक्टर फॉर कम्युनिकेशंस हूँ। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन आज अपने 23वें साल में पहुँच चुका है। ये 2001 में शुरू हुआ था, जब प्रेसिडेंट क्लिंटन और तब के हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी इकट्ठे हुए 2001 के बुर्ज अर्थक्वेक में। क्लिंटन जी ने अप्रोच किया वाजपेयी जी को बोलने के लिए कि हम कैसे आपके देश की मदद कर सकते हैं। तो उस टाइम पे वाजपेयी जी ने बोला कि आप एड देंगे तो वो इमीडिएटली ख़त्म हो जाएगी। आप अमेरिका में बैठा जो डायस्पोरा है, इंडियन लोग हैं जो अपनी मदरलैंड को कुछ करना चाहते हैं, उसको कुछ देना चाहते हैं, आप उनको मोबिलाइज़ कीजिए। उस तरीके से अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन का जन्म हुआ 2001 में, और हम एजुकेशन, लाइवलीहुड, पब्लिक हेल्थ एंड लीडरशिप डेवलपमेंट के एरियाज़ में काम करते हैं। आज आप जिस इवेंट में आए हैं उसका नाम है डिजिक्विटी। वो हमारे डिजिटल इक्वलाइज़र प्रोग्राम का एनुअल नॉलेज इवेंट है। हमारा डिजिटल इक्वलाइज़र प्रोग्राम 2004 में शुरू हुआ था और आज वो अपने ऑलमोस्ट 20 साल कंप्लीट करने वाला है। वो बच्चों की एजुकेशन पे काम करता है, टेक्नोलॉजी एज पेडागोजी पे काम करता है, टीचर्स को उसमें ट्रेन करता है और स्टेम एक्सपर्ट्स क्रिएट करता है, और स्पेशल फोकस देता है गर्ल्स पे, क्योंकि हम जानते हैं कि स्टेम में इक्वल पार्टिसिपेशन होती है स्कूलिंग में लड़का और लड़की की, लेकिन करियर्स में सिर्फ 14% लड़कियां पहुंच पाती हैं। तो उस गैप को कैसे ख़त्म किया जाए, वो इस टेंडर एज में, इस अर्ली लर्निंग के साथ उनको हम 6th ग्रेड से स्टेम शुरू करते हैं, ताकि वो इन करियर्स को भी आगे चल के चूज़ करें। आज के कार्यक्रम में क्या क्या देखने को मिलेगा? आज के कार्यक्रम में आप देखेंगे कि हम कैसे, ये DE ने इवेंट किया है लेकिन सिर्फ अपने बारे में प्रमोट करने के लिए नहीं किया है। हम चाहते थे कि हम इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स को लेके आए, जो गवर्नमेंट में काम करते हैं, जो पॉलिसी में काम करते हैं, जो बाकी सिविल सोसाइटीज़ में काम करते हैं, NGOs में काम करते हैं, जो सब लोग एजुकेशन में बच्चों के लिए काम करना चाहते हैं, उन सबको हम एक प्लेटफॉर्म इकट्ठा देना चाहते थे, उन्हें इकट्ठा लाना चाहते थे, ताकि वो इस बारे में डिस्कशन कर पाएँ, डिलिबरेट कर पाएँ कि कोविड से जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कैसे करेंगे और उसमें टेक्नोलॉजी क्या रोल प्ले कर सकती है। टेक्नोलॉजी जो हमारे स्कूल शायद अगले 10 या 15 साल तक ना पहुंच पाते, वो कोविड के कारण एजुकेशन
विद टेक्नोलॉजी का अडेप्टेशन पिछले 1.5-2 साल में बहुत जल्दी हो गया। उसको आगे कैसे लेके जाया जाए? टेक्नोलॉजी इकलौता मीडियम बचा था। हमारे 82 हफ्तों तक स्कूल क्लोज थे इंडिया में। टेक्नोलॉजी एक मीडियम था जिसके थ्रू टीचर्स भी पढ़ा पा रही थी, स्कूल भी बच्चों तक पहुंच पा रहे थे। तो जो 2 साल में हुआ उसको आगे हम उस ग्रोथ को कैसे मेंटेन रखें और बच्चों तक टेक्नोलॉजी एंड स्टेम लर्निंग कैसे लेके जाएं, उसकी डिलिबरेशन के लिए ये इवेंट है, जहाँ पे हमने सारे की इकोसिस्टम स्टेक होल्डर्स फ्रॉम मीडिया टू गवर्नमेंट टू सिविल सोसाइटी टू कॉर्पोरेट्स सबको यहाँ पे बुलाया है। हम तक केंद्र सरकार से, लेकिन हमारे जितने 24,500 स्कूल हैं जिनके साथ हमने काम किया है इतने सालों में, वो सारे सरकारी स्कूल हैं। हमारा काम ही यही है कि हम अंडर रिसोर्स्ड सरकारी स्कूल ढूंढते हैं और वहाँ पे जाके हम डिजिटल लर्निंग और डिजिटल इक्विटी क्रिएट करते हैं अलॉन्ग विद जेंडर इक्विटी, कि लड़कियों को भी उतना प्रोत्साहन मिले जितना लड़कों को मिलता है।